Bismillahirrahmanirrahim. Now the question is question number 9. That is exercise 5.3, question number 9. And this question is very important. But before solving this question, I would like to explain the question, because once you will be knowing the question, then that will be easy for you to solve it. Now he has given this expression. This is the expression that has been given by the examiner: ax cube minus 9x square plus bx plus 3a. Now I have not written from my own pocket. This is the one that has been given by the examiner. This expression is given by the examiner, and over here he says that this expression is exactly divisible by this. यानी यहाँ पर वो ये कहना चाहता है कि ये इसको अगर इस पे तकसीम करें तो बाकी कुछ भी नहीं बचता, एग्जैक्टली डिविजिबल, मुकम्मल इस पे डिवाइड हो जाता है और जवाब इसका 0 आता है. दिस इज द एक्सप्रेशन, एंड वंस दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय दिस. अब देखिए ना, फर्ज कीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 डिवाइडेड बाय 2. 9 डिवाइड बाय 2. अभी जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये 9 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो 2 4 आर 8, तो 1 आ जाता है. अब 1 क्या है? 1 रिमाइंडर है. इस 1 का क्या नाम है? 1 रिमाइंडर है. और 4 क्या है? 4 कोशेंट है. 4 आपका कोशेंट है, 1 आपका रिमाइंडर है. अभी यहाँ चाहता क्या है एग्जामिनर? व्हाट एग्जामिनर डिजायर्स that we should find out. He desires that we should find out the value of A and B. So we have to find the value of A and B. Now I'm going to solve this. So I request your concentration. Now this is, I suppose that this is Px. This is Px. And from where I have written this expression? This is the expression given by the examiner. I copied from here. I copied from here to ax cube minus 9x square minus 9x square plus bx plus 3a plus 3a, and qx. Now this is this divided by this, so that is qx is equal to x square minus 5x plus 6. Now I'm going to factorize it. So how I will factorize and what are the techniques? So I will multiply this 6 with the coefficient of x square. Now what is the coefficient of x square? Coefficient of x square is 1. So I will multiply this 1 with this 6. Once I multiplied 1 with 6, I got the answer 6. Now I have to make two such factors. I repeat, I will make two such factors of 6. When those factors will be multiplied, we will be getting 6, and once those factors will be added, we will be getting 5. So these two factors are 3 and 2. Once I multiply 3 and 2, I get 6, and once I add them, I get 5. So instead of that minus 5x, I have written minus 3x and minus 2x. Now you will be asking that, sir, you are saying that adding, but now you have subtracted. I have not subtracted. Minus once signs are same, then they are added. So minus 3x minus 2x. Now I took x common from here, and x minus 3 is left. Once I have taken x common from here, so once I have taken x common from here, so what is left with me?
that is x minus 3, and what is common over here, that is 2. Once I will take minus 2 common over here, I will be left with x minus 3. X minus 3. So this is x minus 3. This is x minus 3. Once I take x minus 3 common, so I will be left with x minus 2. X minus 2. So what is this? This is px. Now over here he says that px is exactly divisible by qx. Then x minus 3 is equal to 0 or x is equal to 3. X is equal to 3. And this I have written from here. And x minus 2 is equal to 0. From where I have taken x minus 2. This is the x minus 2. This is the x minus 2. So x minus 2 is equal to 0 or x is equal to 2. Now I found out two values of x. Two values of x. One is x is equal to 3 and second is x is equal to 2. Now these are the factors. Once I put the values of these factors in the expression, I will get 0 and 0 over here. So putting first of all 2 in this expression, then putting x3 in the above expression. So please concentrate over here. इस तरफ तवज्जो दे, आप तवज्जो दे बेटा, इस तरफ शाबाश। अभी क्या होने वाला है, यहाँ पे a लिखा हुआ है, यहाँ मैंने a लिख लिया, यहाँ पे x लिखा हुआ है, मैं x नहीं लिखूंगा, मैं x की जगह पे 2 लिखूंगा। 2 की पहले बारी है, तो जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा। तो यहाँ पर भी 2 लिखूंगा, यहाँ पर भी 2 लिखूंगा और यहाँ पर भी 2 लिखूंगा। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ये 3a इसी तरह लिखा रहेगा। और जिसकी पावर 3 है तो मैं यहाँ 3 लिखूंगा, जिसकी पावर 2 है तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा। आप देखिए 2 की पावर 3 8 होता है। कैसे 8 होता है, कैसे 8 होता है, यहाँ देखिए बेटा। 2 की पावर 3 का मतलब है कि ये जो 2 है आपस में 3 दफ़ा ज़रब खाता है। तो जब ये 3 दफ़ा ज़रब खाता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़र 4, 4 4 ज़र 8 आ जाता है। इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिए 8। फिर यहाँ पे 2 2 ज़र 4 और 4 को 9 से ज़रा जो है तो 36 आता है, इसलिए ये 36 ऐसे आया है। फिर यहाँ 2b है, यहाँ 2b है, यहाँ 3a है, यहाँ 3 है। फिर आपके जहन में एक बात आएगी, सर देखें ना यहाँ पर आप यहाँ b2 लिखा हुआ, आपने 2 भी लिख दिया। इससे बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप b2 लिखो या 2b लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सवाल उसी तरह ही रहता है। तो यहाँ पर यहाँ देखें, अब मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन कैसे आई, देखिए बेटा, ये आपका 8a है, ये आपका 3a है। इन दोनों को जब मैंने जमा किया तो मेरे पास आ गया 11a। फिर ये 2b है, यहाँ 36 माइनस है। जब मैं इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये इससे 11a आ गया, ये 2b आ गया, ये 30। ये पहली इक्वेशन आपकी मुकम्मल हो गई। अभी 2 की बारी ख़त्म, 2 की बारी ख़त्म, 2 ने जो करना था कर लिया। अभी 3 की बारी आएगी और 3 की वैल्यू कहाँ पुटअप करें, पुटअप आपने यहीं पे करना है, इसी एक्सप्रेशन में आपने पुटअप 2 की वैल्यू भी यहाँ पुटअप करनी है और जो आपकी 3 की वैल्यू है वो यहाँ पर आपने पुटअप करनी है। ठीक है, ताकि मैं ये क्या हटा, ताकि आप लोगों को वैसी नॉलेज होगी क्या हो गया, नहीं समझ आ रही है, कोई मसला है। इसलिए यहाँ पर आपने क्या करना है, P3 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है, x की जगह पे 3 लिख दें। जहाँ x की ताकत 3 है तो वहाँ 3 लिखें, जहाँ x की ताकत 2 है तो वहाँ 2 लिखें। तो ये आपका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब देखिए x की पावर 3 है, आपके शरीर 27 कैसे आ गया,
हमें तो नहीं समझ आ रही ये आपने कैसे ये x की पावर 3 आपने 27 किया है। तो यहाँ बता देता हूँ यार, यहाँ देखो, यहाँ बता देता हूँ ये आपकी x की पावर 3। अभी x की पावर 3 का मतलब है कि ये वाला 3 आपस में 3 मरतबा ज़रब खाता है। तो ये जब आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 27। तो x की पावर 3 बराबर होता है 27 के, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 27। ठीक है, ये झगड़ा खत्म हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर किसके बराबर है 9, 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर बराबर होता है 9, यानी 3 को 3 से ज़रूर दें तो 9 आता है। तो यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया, यहाँ 3b लिख दिया, यहाँ 3a लिख दिया। अभी फर्दर क्या है, ये आपका 27a है, ये आपका 3a है। इन दोनों को जमा करेंगे तो 27 और 3 को जमा करें तो क्या आता है 30, तो ये आपका 30 आ गया। ठीक है, फिर ये 3b आ गया, फिर 9 है तो 9 को 9 से ज़रब दे तो 81 आता है, तो ये आपका 81 आ गया। अब इस 81 को मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके चला गया हूँ, तो यहाँ भी 81 आ गया, लेकिन यहाँ मनफी था, यहाँ एक जमा हो जाएगा। अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 3 पर मैंने इसको भी डिवाइड किया, 3 पर इसको भी डिवाइड, 3 ये याद रखो अपने जहन में कि जो भी आपने कार्रवाई करनी है ना, आपने इक्वेशन के दोनों तरफ करनी है, एक साइड पे नहीं करनी, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखें, ये आपका 10 पे कट जाता है, ये आप कैसे कट जाता है, और ये आपका 27 पे कट जाता है। तो फाइनली जो आपके पास इक्वेशन आ गई वो ये इक्वेशन आ गई। ये देखें, या मैं निशान, तीर का निशान इसलिए लगाता हूँ, अब यार सर कहाँ पढ़ा रहे थे, हमें तो याद ही नहीं आ रहा। भाई मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2, यानी इक्वेशन 2 को आप 2 से ज़रब दे दें। अब आप अभी मेरे जहन में कैसे आया कि 2 से ज़रब दे दें, क्या मेरे पास कोई जादू है? नहीं, मेरे पास कोई जादू नहीं है, लेकिन मुझे कैसे पता लगा कि इसे 2 से ज़रब देंगे तो हल होगा? क्यों कि यहाँ पे 2b है और यहाँ 1b है। जब मैं इसको 2b करूँगा तो फिर जाके सेपरेट कर सकूँगा। तो मैंने इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 से। ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 कौन सी, 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 है, जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20a आ जाएगा, ये 2b आ गया। 27 को 2 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 54 आ जाएगा। माइनस किया, अब जब माइनस करते हैं तो नीचे वालों का तमाम साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। अब ये आपका कट गया, तो अभी 20 में से 11 गया, बाकी रह गया 9, और ये 54 में से 36 गया, बाकी रह गया 18, मनफी 18। अब देखो यहाँ भी मनफी है, यहाँ भी मनफी है, तो ये मनफी कैंसिल हो जाएंगे। अभी ये 9 है, दोनों तरफ 9 पे मैंने डिवाइड किया तो a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू आ गई 2। अभी मुझे तो सिर्फ a की वैल्यू नहीं मालूम करनी, मुझे तो b की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो मैं इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट करके, इक्वेशन है 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36। तो इक्वेशन 1 ये वाली 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जहाँ पे a लिखा हुआ है, अब मैंने a नहीं लिखना, बल्कि a की जगह पर मैंने ये वाला 2 लिख देना है, या a की जगह पर मैंने 2 लिख दिया, तो 11 2 22, 11 दूने 22 आ गया, और फिर ये 2b ये 36 आ गया। आई हैव टेकन दैट 22 ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। सो वंस वी सब्ट्रैक्ट 22 फ्रॉम 36 वी गेट 14, and over here 2b divide both side by 2, so b that cancel with 7, and now we got our answer. So our answer is, that is we were supposed to find the value of a and b. Now the value of a is equal to 2 and the value of b is equal to 7. Okay, if you got
something now it's your moral responsibility to like this channel, subscribe this channel and share this channel, because the internal satisfaction, internal pleasure comes with sharing. Real happiness comes with sharing. So I'm closing this video with lot of prayers with my Eid preach. Thank you very much. Allah bless you. Allah reward you. Assalamu alaikum.